what is to be done, that till now we have read about the theory of demand and theory of supply. Theory of demand के according direct indirect relation between price and demand for commodity, and according to theory of supply positive or direct relation between price and supply of a commodity. Now question arises कि what is the practical benefit of the study of these two topics? How are we going to benefit from the study or knowledge of these two topics? Yeah, how are they useful in our daily life? Although we see their application, but still many times we need some other example to understand the topic thoroughly. So for understanding this topic, sometimes what do we see in the market? Sometimes there is excess of any commodity, oversupply of any commodity is there, and sometimes we see there is a shortage of some of the commodities. When that shortage is related to those commodities, they are related to our very basic needs, especially food grains, then the problem becomes major, especially with regard to poor people. Average income group, they can manage anyhow by one or the other way, they manage. Middle income group people, they manage by this or that way, they try to manage. Rich people, they don't have any problem whether price rise or falls, it doesn't make any difference to them. But the problem comes with very poor strata of the society. Whenever prices of food grains, they increase, especially increase, so then those poor people face a lot of difficulty. So government of the country, being a welfare government, it has to pay attention to all categories of the people in the society. Now all categories include consumers as well as producers. Both types of people need to be paid attention. सबके लिए government is responsible. So here the problem is related to poor people, that means they are the consumers. When prices are more, producers are always having profit. तभी prices more है ना, तो because they are getting profit, that's why prices are high. They are very happy with high prices. But consumers are not happy with high prices. So consumers may be poor consumers. So what does government do? Government takes help of the strategy of this price ceiling or maximum price ceiling. Concept है maximum price ceiling. Now what is done by the government? Although we have done, still I am trying to draw. What is this situation? If you remember yesterday's work, equilibrium price, equilibrium point, and this is, if we bring this line downward, equilibrium point. Okay? Now if there is, this is SS supply curve, DD demand curve. If there is, the price is beyond this OP price, then there will be no problem because supply is more. तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, सप्लाई ज्यादा तो एवरीबडी विल बी गेटिंग द कमोडिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओपी प्राइस है तो यहाँ पर हो सकता है सम कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू पे दिस प्राइस. कईयों के पास इतने मनी नहीं है कि वो इस चीज के लिए, मान लो ये 20 रुपीज प्राइस है, सम पीपल मे नॉट बी एबल टू पे दिस प्राइस, नहीं दे सकते. इफ एवरीथिंग इज लेफ्ट टू द मार्केट ऑपरेशन ऑफ दीज फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई, मतलब गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, जो मार्केट में सेट हो रहा है वो ये प्राइस सेट हो रहा है. हो सकता है सोसाइटी में थोड़े लोग हैं जो ये 20 रुपीज प्राइस नहीं दे सकते इन ऑर्डर टू बाई द कमोडिटी. Now to help those people, अब government का role comes forward. Government enters the market, interferes in the market, disturbs the operation of these demand and supply forces. Disrupt मतलब interrupt करती है government. अब क्या करती है, मान लो government asks the producers to sell their produce at this OP1 price. इंटरफियर करने का मतलब दखल देना, रोकना, रोक टोक करना कि आप इस 20 रुपीज प्राइस पे डोंट सेल, यू सेल दिस प्रोडक्ट, मान लो ये 15 रुपीज है मान लीजिए, ठीक है, तो इसके ऊपर आप सेल करें. नाउ व्हाट डू वी सी हियर, इफ वी पे अटेंशन टू दिस प्राइस, व्हिच क्वांटिटी इज मोर, डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. ये प्रॉब्लम आ रही है. तो गवर्नमेंट ने तो ये इंटेंशन के साथ इसको लो किया कि ज्यादा लोग इसको खरीद पाए, बट स्टिल what has been the resultant effect of this strategy adopted by government? Demand अभी भी ज्यादा होगी, shortage अभी भी हो रही है. तो इसका रिजल्ट ये होगा, there will be still more demand in the market, supply is still less. तो now what is the possible outcome? Possible outcome हो सकता है कि जो sellers हैं they can adopt two practices. दो तरीके, वो भी कोई भी एक एक्शन होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो रिएक्शन इज फ्रॉम अदर सोसाइटी साइड. तो लोग जो है सेलर्स हैं, बिकॉज उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो दो चीजें कर सकते हैं. एक हम अपनी नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, कोई हमें इंटरप्ट करता है तो हम कोई ना कोई उसका रिएक्शन होगा. तो अब जो सेलर्स हैं वो दो तरीके कर सकते हैं.
या तो दे कैन अडॉप्ट द मेथड की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ जाता है कंज्यूमर दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू देम, कोई वो नहीं है, पार्शियलिटी नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, जो पहले आ गया दैट पर्सन कैन बाय फ्रॉम द सेलर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये सेलर है वो अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करे, आप क्लास में आ रहे हो, जो पहले आया पहले बेंच पे बैठ जाए, जो बाद में आया पीछे जाके बैठ जाए अपने आप, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैंने सबकी सीटें चेंज कर दी, तो मैं अपनी मर्जी चला रही हूँ, ठीक है, तो दैट सेम वे सेलर कैन शो हिज प्रेफरेंसेस, जिसको बेचना चाहे वो बेच सकता है। तो अब जिसको बेचना चाहे तो उसका मतलब है कि वो फिर अपनी क्वांटिटी को, सप्लाई को जो है उसके पास, उसको पीछे रखे, सबको दिखाए ही ना, कहे कि मेरे पास नहीं है, जिसको देना चाहे उसको दे दे, बाकियों को मना कर दे कि जी सामान खत्म हो गया, ये भी कह सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द सेलर कि विच पॉलिसी ही वांट्स टू अप्लाई, ठीक। तो रिजल्ट फिर ये होता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट एडॉप्ट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ राशनिंग, या राशनिंग का मतलब फेयर प्राइस शॉप, जो आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th में, फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है, थ्रू दोज फेयर प्राइस शॉप्स राशनिंग कर सकती है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे आर काउंटेड, देयर नीड्स एज पर देयर एज ग्रुप दे आर काउंटेड, एंड मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू देम, स्पेशली फूड ग्रेन्स, व्हीट हो गया, राइस, पल्सेज, शुगर, केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है, या एडिबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो मेन चीजें खाने पीने का सामान, वो वेरी बेसिक, तो वो चीजों की राशनिंग कर सकते हैं, इतनी ही क्वांटिटी आपको दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। और रिजल्ट इसका क्या होता है, देयर कैन बी ब्लैक मार्केटिंग ऑल्सो, कि सेलर्स अपनी चीज के प्राइस को ज्यादा बढ़ा के, मोर देन द लीगल प्राइस, इस प्राइस से ज्यादा के ऊपर भी बेच सकते हैं। जिनको बहुत अर्जेंट जरूरत होगी वो लोग थोड़ा बहुत किसी तरीके मैनेज करके ज्यादा प्राइस पे भी हम लोग चीज ले लेते हैं। कई बार कोई अर्जेंसी ऐसी होती है कि हम थोड़ा सा प्राइस जैसे तैसे करके अपनी बाकी चीजों को पीछे करके, हम कोई मान लो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, एनीबडी इज नॉट हेल्दी इन द फैमिली, सिक है, तो जाके ले लेते हैं, महंगी दवाई भी ले लेते हैं, उस समय हम बहस नहीं करते कि इसका प्राइस तो इतना ही, हमें इतने के ऊपर ले लेते हैं, जरूरत है। तो समटाइम्स नीड इज सच दैट पीपल आर दे वांट टू बाय, थोड़ा बहुत ज्यादा प्राइस भी दे देते हैं, बट मेन सफरर्स आर द वेरी पुअर पीपल, एक्सट्रीमली पुअर पीपल, उनके पास तो है ही नहीं, वो ज्यादा भी कहाँ से दे देंगे, चाहते हुए भी नहीं दे सकते। So these are the lacunas मतलब negative drawbacks of this system. ये इसकी problems भी हैं. On the other side, तो the price which is fixed here, this is called maximum ceiling price. ये वाले price को where is it get determined? Below the equilibrium price. पहचान क्या है इसकी, कहाँ पे सेट होता है ये? Below the equilibrium price. Now the other situation, alternative situation can be there. अगर मार्केट में बायर्स आर देयर, तो सिमिलरली देयर आर सेलर्स ऑल्सो। अब सेलर्स भी टू मेन कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज होती है। वन टाइप ऑफ कमोडिटीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड वन कैटेगरी इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। आप अपने डेली लाइफ में देखो, हम दो तरह की चीजें यूज करते हैं, या तो वो खाने पीने का सामान होता है, फार्मिंग से, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आ रहा होता है, बाद में चाहे प्रोसेस किया हो जो भी है, बट अल्टीमेटली वो लैंड से, एग्रीकल्चर से मिलता है जितना भी खाने पीने का सामान है मैक्सिमम। और सेकेंडली जितनी चीजें हम यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, फैक्ट्रीज में बनी हुई चीजें होती हैं, तो दोनों तरह की चीजों की जरूरत है। अब जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं, शायद मैंने पहले भी आपको बताया, एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ए बिजनेस ऑफ नेचर एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड ए बिजनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। मैन्युफैक्चरिंग के काम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फैक्ट्री में कितना सामान प्रोड्यूस करना है, बनाना है, अपनी मर्जी है, 10 आइटम्स प्रोड्यूस करनी है, 20 करनी है कि 1000 करनी है, अपनी मर्जी है, रोका जा सकता है मशीन। बट नेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश कितनी होगी, टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे जाएगा, ड्रॉट पड़ेगा कि फ्लड आएंगे, इन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग ए नेचुरल बिजनेस, एग्रीकल्चर इज ऑलवेज अनसर्टेन, इट डिपेंड्स अपॉन द विशेज ऑफ नेचर। ठीक ठाक है सारा कुछ तो गुड क्रॉप हो जाती है, बढ़िया हार्वेस्टिंग हो जाती है, नेचर अगेंस्ट चली जाती है तो ये सारा कुछ फसल खराब भी हो जाती है। ठीक है, तो नाउ अज्यूमिंग कि एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बीइंग सीजनल इन नेचर, तो जब भी किसी चीज की क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो एट दैट टाइम सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेज इन द मार्केट। जैसे हम नॉर्मली ले तो वीट की जो क्रॉप है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में होती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सारे पार्ट में ज्यादा वीट की ग्रोइंग होती है।
तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो मार्च अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसी समय सारी मंडियों में सारी मार्केट्स में ग्रेन आ जाता है। तो उस समय सारे ही फार्मर्स अपना ग्रेन लेके आ रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज ओवर सप्लाई। सारे लेके आ रहे हैं, सबने फसल काट लेनी है, किसी ने 10 दिन पहले, किसी ने 10 दिन बाद में, बट वो क्रॉप आ जाती है मार्केट में। देयर इज ओवर सप्लाई। तो अब अगर ओवर सप्लाई है तो फिर होना तो ये चाहिए कि वीट का प्राइस बिल्कुल ही कम हो जाए, 2 रुपए किलो भी हो जाना चाहिए, 3 रुपए किलो भी हो जाना चाहिए। तो उस समय अगर ऐसे हो जाए तो फिर फार्मर्स आर एट ए नेगेटिव साइड, उनका नुकसान है। अपने पास से उन्होंने इतना पैसा खर्च करके इतने सीड, इतनी फर्टिलाइजर, इतना सब कुछ किया है, बट अल्टीमेटली इफ दे गेट वेरी लो प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस देन इट इज वेरी हार्मफुल फॉर देम। उन्होंने भी सर्वाइव करना है, हर एक ने अपनी लाइफ की नीड्स को पूरा करना है, मनी इज रिक्वायर्ड। तो